It's a hell of the money involved in raising and keeping that data mines. The NCBI will help you to get a lot of different types of data that contains, you can see lots of words over there. That includes even the books, the projects. Most of the time, we stop at this thing, and that what we call as the gene, because we might be interested in the function of a certain gene. So we will be interested to see and browse a particular gene in NCBI. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम NCBI में कोई gene browse करते हैं तो generally तौर पर किस किस्म की information आपके सामने है and what that means to you. So we can try any gene which you like to. Anyone can suggest a gene, please? A particular gene in this case, we have studied SF3B1. Once you are done with this thing, you have searched a particular gene, you will get this page. That page contains lots of data. But I am telling you, you are not required to know everything. सबसे पहले अपने आप को ये educate करो, अपने आप को यानी कि आमतौर पर हम ना data की information देके फौत हो जाते हैं. वहीं पर हम diffuse हो जाते हैं. We believe कि यार ये तो मैं समझ नहीं आने वाली चीज पता नहीं क्या है. It is absolutely okay not to know everything is present on the page. What are the minimum things you should know? What are the most important things which you should know? Please just stay with me. The first step is that you should be able to understand which gene you are looking at. You should understand the species you are looking at. Traditionally, सबसे पहले NCBI जो है वो हमें human gene को दिखाता है as a choice. Okay, there is a difference. It's very easy to pick whether the gene belongs to human or not. Traditionally, the human gene is written in capitals. So अगर किसी जीन का नाम capitals में लिखा हुआ है तो हम traditionally assume करते हैं कि ये human gene है और human example है. But traditions पे नहीं जाइए. Please read that it is for the Homo sapiens. It also tells us that this particular gene is also known with some alternative names as well. And you should know about their alternative names as well. Because research has been done in different localities in the world, in different universities, under different circumstances. People grow one particular gene with different names over the period of time. And this is one way to understand that your gene is also known as something else. These are all options we are having, about 88 options on this page from this gene. This one is all capital, so I am assuming this is from Homo sapiens. My assumption was correct because this is Homo sapiens. This is the location of the gene on the chromosome. Chromosome number 2, that makes sense, interesting. And this is the code. This is the code of that location, and this is the address of the location. If you're able to read that number, it is like it's like from it's 19 million 738,000 निगलत हो गया 197,189,784 मैं आपको इसे ये दिखाना चाहता हूं आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. This is the starting point of that gene and this is going to be the end point of that gene. 197,435,093. This is the exact location of that gene. एक चलो क्या चीज है अच्छा चलो था गया गाना ठीक है ठीक ओके ओके 3 घंटे का स्टेमिना मुश्किल होता है बेचारे 2 दफा ना फंस जाते हैं बेचारे जब मैं क्लास शुरू करता हूँ फिर साथ डॉक्टर मुस्तफा ये भी फंस जाता है एलिवेटर वाला फंस जाता है वो दोनों भी बेचारे आगे ना सर मैं चले जाऊँ आप कर देंगे एलिवेटर वाला भी कहेंगे सर मैं चले जाऊँ ना आप करना सर मैं चले जाऊँ ये चीजें आप संभाल लेना ओके लास्ट में लग रहा था सही मजेदार ओके तो गाइस तो I'll show you इसका मतलब क्या ये लोकेशन क्या है but this is the location of the gene in the chromosome. हम सिर्फ यही जानते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे है. That's good enough यार. It's present. कितनी मजे की बात है. This is one your gene and you know that it is present on the chromosome number 2. The next thing is that you should know ये P आर्म के ऊपर है कि Q के ऊपर है.
And the next is that exactly kahan pe hai. What is the context and actual address of that chromosome? Okay, and then there is another alternative names of that. अच्छा, अब जो mouse के लिए है ना, mouse का species name, you know, musculum, इसका जो first letter है वो capital होता है. For the mouse, it is the first letter which is capital. So this is for the mouse. And then for the other, let's click on the Homo sapiens version. That means the one with all the capitals. मुझे नहीं पता ये जीन क्या करता है, अभी हम देखते हैं कि ये क्या करता है. यहाँ अगर मैं indirectly आपको unfair means से support कर रहा हूँ तो I'm really sorry for that. Okay, let's see. So this is the information about that one particular gene which we are talking about. The name of the gene is SF3B1, the splicing factor 3B subunit 1. There is a spliceosome, or there is a splicing factor which might have multiple domains. This is one of the domain, and this is one part which is coding one domain of that particular gene. We don't need to worry about the function, by the way, but we are studying is not the function. We are studying how to reach the target information. So the initial information, especially the summary, that is very important. If you are working on the 4 different genes, I suggest you guys to please copy paste that information with you about that gene. This contains very critical information, especially कि ये होता कहाँ है, इसकी summary, इसका function क्या है. The next important thing is that where its genomic location. Genome के ऊपर ये किस जगह पे है. So it is present here. थोड़ा सा weird लग रहा है, मैं genomic locations NCBI से नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ. मैं आपको UCSC से दिखाता हूँ अभी इसी की. Okay, इसकी genomic locations है. You can browse and scroll as well, but ये हम यहाँ से नहीं करेंगे. सिर्फ मैं नहीं करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करें, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें. Okay. The next information is about the bibliography. That's very critical. जब आप लोग थीसिस लिखते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, आपको रिसर्च आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है जो आपके जीन के फंक्शन के बारे में बताएं, जो आपके जीन से रिलेटेड डिस्कवरीज के बारे में बताएं. So NCBI आपकी आसानी के लिए जो मोस्ट रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स हैं उनको अलाइन करके तरतीब से रख देता है. Look at the date 2021 here. 2021. 21. You can see, you can go to see more. So like all the relevant papers which are related to this particular gene is organized here. And this one, the next paragraph, these are the gene references into the functions. These are the papers which describe the function of that particular gene. हम इस जीन के फंक्शन के बारे में कैसे जान पाए, कैसे हमें पता लगा ये जीन क्या करता है और किन किन चीजों में इन्वॉल्व है. These are the related papers which help us to identify the functions of that gene. जब उनको स्टेटमेंट बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर है, उनको जीन है, आयन चैनल रेगुलेटर है, so there must be associated supported research paper behind that information. Okay, so next. तो आपको ये वाला डेटा जो है शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप लोग रिसर्च करते हैं, यू नीड टू स्टिक अराउंड वन पर्टिकुलर और फ्यू जीन्स, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी बातें बार बार घूम फिर के याद करनी पड़ती हैं, बार बार जाननी पड़ती हैं. These things will happen. Okay, and then how we able to know about the phenotype and other things. The next, which I want you guys to, the next stop is just go down, scroll down, is the NCBI reference sequences. This should be your next stop for any particular gene. This is the reference sequences of the gene. The first one is the sequence of the genome. And we are not studying the sequence of genome from NCBI, so मैं इसको touch नहीं कर रहा. लेकिन आप याद रखें कि जो NCBI का genome का sequence है, उसका code starts from the NG. It starts from the NG. So whenever you search NG underscore 032903.2, that means we are referring to S क्या था? F3B1 genome of that particular. Sir. जी. सर ये रेफरेंस सीक्वेंस का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है इसका? Over the period of time, we have collected the base pair information about the genes and the genomes. We are collecting it from multiple sources, from one paper, from another paper, from one research, from another research, and then we create a consensus.
and we have created a reference sequence which is, you can say, adopted by the many or adopted by the maximum people out there. That sequence which is accepted by the many, you can consider it as a reference sequence. अगर आप SF3B1 के सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये SF3B1 का सीक्वेंस है? You will have to compare it with the reference sequence. आपका सीक्वेंस कितना अलग है, उसमें कितनी म्यूटेशंस हैं? How you able to know that thing? By comparing your sequence with the reference sequence. Now we have multiple sort of reference sequences. The first is the sequence of the genome called NG here, NG. The next is the sequence of messenger RNA, or you can say the sequence, the nucleotide sequence. And that is where you should be interested in GG. सर ये जो जीनोमिक रेफरेंस नंबर है NG, ये और ये जो आगे स्पेसिफिक नंबर लिखा हुआ है, ये जनरली सिर्फ NCBI का कोड है या उस जीन? NCBI, शाबाश, इट्स अ गुड पॉइंट। ये बहुत NCBI ने अपने कोड्स अलग रखे हुए हैं, यानी कि अगर आप इसी जीन का जीनोम सीक्वेंस का कोड देखना चाहेंगे UCSC जीनोम ब्राउजर में, उसकी कोडिंग अलग होगी। वो अलग बात है कि वो हो सकता है वो भी सीक्वेंस सेम हो, लेकिन वो अपने पोर्टल में अपनी इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से अलग नंबर और कोडिंग के साथ सेव करता है। और खास बात, ये आपका सवाल इसलिए अच्छा हो गया है, खास तौर पर एक सीक्वेंस या एक पोर्टल दूसरे पोर्टल्स को भी अकोमोडेट करता है, वो उनके कोडिंग्स को भी आपको साथ साथ दिखा देता है। मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे, ठीक है? इट्स अ गुड पॉइंट। ये एनसैम्पल पे इसका नाम क्या होगा, UCSC पे इसका नाम क्या होगा, CCDS सीक्वेंस पे इसका नाम क्या होगा, you will be able to see that thing. So let's start with the first thing, and that is about the messenger RNA. अगर ये एक प्रोटीन कोडिंग जीन है तो इसका मैसेंजर RNA होगा, and you know the messenger RNA produced is called as a transcript. But here you are looking at multiple transcripts. You can say 1, 2, 3, and this is NM001 blah blah blah, NM blah blah blah, NM blah blah blah. You have looking at the 3 mRNA sequences. Okay, that's bad. Not bad, I mean that's interesting. So that means the gene called SF3B1 is producing 3 transcripts. It makes sense? बताया था मैंने मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जीन जो है ये 3 ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इट मेक सेंस? सो देयर विल बी लाइक 3 ट्रांसक्रिप्ट्स आउट ऑफ 1 जीन। तो हम इनमें से किस ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस देखें? अगर मैंने रिसर्च करनी है, मैंने सीक्वेंस मालूम करना है, मैंने प्राइमर डिजाइन करने हैं, तो विच वन ऑफ द सीक्वेंस आई शुड फॉलो? आमतौर पर दे एक्सप्लेन इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट, लाइक ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट, this variant number 2 uses an alternate splice site in the 3' coding region compared to the variant 1 that result in a frame shift. So you should be smart enough to read the individual transcript, which one of them is the primary and the main transcript of the gene, and use that sequence and information for your processing and for your research. For example, यहाँ पर मेरी समझ के मुताबिक, look at that. Transcript variant, this variant number 3 lacks several exons and its 3' terminal exon extends far. इसकी भी कुछ चीजें कम है, बता रहा है वो कौन कौन सी चीजें कम। Now look at the transcript variant number 3, ये जिसको नंबर 6, इसका नाम क्या है? Splicing factor 3B subunit 1 isoform number 1. There's 3 isoforms, number 1 is here. Look at the transcript variant, this variant encodes the longest isoform. तो ये एक छोटा सा की पॉइंट है which you should keep with your mind कि आमतौर पे जहां लिखा होता है ना कि ये longest isoform है, remember कि this is the main transcript of the gene. बाकी इसी की वेरिएशन होती है, किसी में 3' UTR नहीं होता, किसी में कोई एक्सोन नहीं होता, किसी में 5' UTR में कुछ चेंजेस होती हैं, किसी में कोई एक्सोन कम होता है, बट मेन ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ये। इसका मतलब है कि SF3B1 पे रिसर्च करने वाले लोगों को इस वाले ट्रांसक्रिप्ट या ये जो नंबर 3 है इस पे रहना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। If they extract their information about the 1 or 2, they were wrong. वो वहां जो एक्सोन मिसिंग थे वो रह जाएंगे, और जो 3' UTR में गड़बड़ थी वो रह जाएगी जो ऊपर ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हो। इसलिए we need to study from here. Means that out of these 3 transcripts, one of the transcript will going to describe should be considered as a default or as a main transcript of the gene.
हम उसको स्मार्टली स्टडी करके, उसको रीड करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन तीनों में से वो कौन सा वाला है। एंड द की पॉइंट इज दैट कि जो लॉन्गेस्ट आइसोफॉर्म होता है दैट इज यूजुअली द मेन ट्रांसक्रिप्ट। इनमें आपस में सीक्वेंसेस में डिफरेंस नहीं होते, थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती हैं, यानी किसी में एक्सॉन कम होता है, किसी में 3' यूटीआर में प्रॉब्लम होती है, किसी में 5' यूटीआर में प्रॉब्लम होती है, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। Now look at that, यहाँ पर दो किस्म के कोड्स मिलेंगे आपको, एक NM दैट ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, किसका? जीनोम सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, किसका? SF3B1। लुक एट द NP स्टैंड्स फॉर द प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो अगर मैं प्रोटीन सीक्वेंस देखने में इंटरेस्टेड होता, आई विल क्लिक हियर। अगर मैं NM यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने में इंटरेस्टेड हूं तो आई विल क्लिक हियर। There are some more information here. Look at that यार, कितने अच्छे हैं ये। These are the counter codings present in the other portals. यानी कि इसी जीन को दूसरे पोर्टल में, दूसरी जगहों पे किन कोड्स के साथ रखा गया है। इसमें एक है हमारे पास, ये देखो, कंसेंसस CDS। कंसेंसस ये वैसे NCBI का ही हिस्सा है, लेकिन अगर मैं यहां क्लिक करूंगा इट विल टेक मी टू द कंसेंसस CDNA सीक्वेंस ऑफ द जीन। ये आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी डिजाइन के लिए, क्योंकि RNA से क्या बनता है? CDNA, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो उससे उसको जीन का सीक्वेंस क्या होगा वो यहाँ पर मौजूद होता है। अभी हम देखेंगे इसको। एंड देन स्विस पोर्टल पे क्या कोड है इसका, यूनिपोर्ट के ऊपर क्या कोड है इसका, एंड देन अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो दे आल्सो अकोमोडेट ईच अदर्स इंफॉर्मेशन एज वेल। But at this time we will be clicking on here to go and to see कि इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कैसी होती है। हम कहां पर, अब हम एक लेयर नीचे जा चुके हैं, एक्चुअली एक लेयर नीचे जा चुके हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाले पेज पे आ गए एंड इट इज टेलिंग अस कि भी होमो सेपियंस है। नेम ऑफ द जीन ये है, उसका सिंबल ये है, ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1 है। यहाँ पर 3 वेरिएंट्स थे, हमने उनमें से एक को सिलेक्ट किया, हमें पता हमने किसको सिलेक्ट किया, और ये उसका mRNA का सीक्वेंस है। डू नॉट वरी अबाउट कि इसमें वो U क्यों नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, ओके, इट्स नॉट शोइंग अप दैट सीक्वेंस। नाउ वंस अगेन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन डिस्कवरिंग ऑफ दोज जीन्स। ये उनके एहतराम में उनके पेपर्स का जिक्र है जिन्होंने इसको ढूंढा, तलाश किया। इस जीन के टाइटल्स क्या हैं, इसके अलावा इसके नाम कौन कौन से हैं, और इसके फंक्शंस के लिए कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, किन लोगों ने, यानी कि ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन लोगों ने इस जीन को यहाँ तक पहुंचाया उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड वे। दैट इज हाउ द पीपल विल गोइंग टू लिव लॉन्गर देन देयर लाइव्स। So and then once again you will see the summary, and that makes sense, and some other related information. You are not supposed to know everything. One more thing is that from here features means, मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे जब मैं चला जाऊंगा ना, वहां पर सीक्वेंस है इसका, दिखा देता हूँ, पहले वो दिखा देता हूँ फिर वापस आता हूँ। If I go down there will be sequence of this, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस है किथे, the sequence is here। ओ आजा, ये आ गया, the sequence is here। बेस पेयर नंबर 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, लुक एट दैट, हाउ मेनी बेस पेयर्स, ओ माय गॉड, ओ 13 यहां तक ऑलमोस्ट ये 6421 बेस पेयर है। ये 6431 होगा, ये 6441 होगा, ये 6451 होगा, ये 6461, 62 एंड 63। समझ आ रही है? तो 6463 बेस पेयर इसके मैसेंजर आरएनए में, बहुत बड़ा जीन है, ठीक है। इमरान से पूछता हूं मैं, किसने दिया, किशोर ने दिया है। So ये एक वेरी बिग जीन, इट मेक सेंस, इट्स अ बिग जीन। जी का भी अब आपने समझना ये फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स जो होते हैं ना, ये इट्स अ वे टू लेबल, इट्स अ वे टू लेबल द सीक्वेंस। हम सीक्वेंस में अलग अलग जगहों के ऊपर लेबलिंग कर सकते हैं कि इस पोर्शन का मतलब क्या है, इस पोर्शन का मतलब क्या है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फीचर्स। और उसके लिए हम डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये काम खुद से भी कर सकते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि उनमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है सीरियल क्लोनर, वो फ्री है इसलिए मैं वो शो कर देता हूँ, वो आप कोई और भी यूज कर सकते हैं उसके अलावा भी डाटा को प्लेस करने के लिए। अब इन फीचर्स में से कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है।
ये फीचर को डिफाइन भी करते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये फिनिश कहाँ हो रहा है और इसका मतलब क्या है। इनमें से एक फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और वो होता है CDS। देखना कहाँ आएगा, एक्सोन 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 एक्सोन, उसको बोलते हैं कंसेंसस। ऊपर आया था। सैरिश की आंखें हमारी आंखों से तेज हैं, अगर मैं ये सैरिश ही थी तो वो नहीं आ रहा तो मिसलिनियस। ये है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कैन यू सी? ओके, लुक एट दैट। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जीन। इसका मतलब जीन कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 1 बेस पेयर से लेकर कहां तक है? 6463। आई काउंटेड करेक्टली। उसके बाद वो कहता है कि इसका इसका ये एक्सोन 1 होगा 1 से लेकर 57 तक। थैंक यू वेरी मच, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इसको। एंड देन वेयर इज द CDS सीक्वेंस? Where is the CDS sequence? CDS sequence. Here is the CDS. From where to where? From 30 base pairs to 3944. ये वो रीजन है जो क्या करता है, जो जीन कोड करता है, जिसमें प्रोटीन कोडिंग पार्ट होता है। प्रोटीन कोडिंग पार्ट कहां से शुरू होता है बोला बताएं? ATG से शुरू होता है ना, स्टार्ट कोडॉन से, और फिनिश कहां पे होता है? स्टॉप कोडॉन पे। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस का स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट कोडॉन से, और उसका इख्तिताम किस पे होगा? हमेशा एक स्टॉप कोडॉन पे। देखते हैं अभी, देखते हैं कहां से कहां तक है। 30 से लेकर 3944 तक। मैं क्लिक करूं इसको ऐसे, व्हेन आई क्लिक द CDS it will take me to the place. Now look, here we are. It starts from here. क्या पहले 3 बेस पेयर कौन से हैं? आप रीड कर पा रहे हैं? ATG। गलत, ATG। सही, देखो ये देखो ATG, और ATG क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन। हर चीज जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस से ऊपर का होता है, जो कोडिंग सीक्वेंस से पहले ही होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कौन सा प्राइम UTR? 5 प्राइम। Whatever which is present downstream of the stop codon, वो क्या होता है? 3 प्राइम UTR। तो ये इसका अपस्ट्रीम रीजन है, इसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। ये वाला 1 से लेकर यहां तक जो भी है। ओके, जो आपने पढ़ा है ना, अब आप उसको देख रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। इट्स अबाउट नोइंग द पाथ एंड वॉकिंग ऑन द पाथ। मैट्रिक्स याद आ गई मुझे, मोड से इसमें बात हो, क्या बात है। नाउ गो टू द लास्ट बेस पेयर। आखिरी बेस पेयर क्या होना चाहिए? हमेशा एक स्टॉप कोडॉन होना चाहिए। Look at that. क्या है आखिरी? TAA, and what was that? It is a stop codon. और जो भी जीन इसके बाद में आ रहा है, जो भी पोर्शन इसके बाद में आ रहा है, what that portion is, this is like the untranslated region. सारा इतना बड़ा सारा, it is not involved in any translation machinery at all. वो अलग बात है कि ये पोर्शन रेगुलेशन में इस्तेमाल होगा। इसमें एक जगह ऐसी भी आएगी जहां पर बहुत सारे A होंगे या T होंगे, वो पोली टेल्स जो पोर्शन इनमें से कुछ बनेगा। ये प्रोसेसिंग होगी इसकी, लेकिन ये सब पोर्शन प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। प्रोटीन का ये सीरियस सीक्वेंस है। सर लास्ट कोडॉन जो है वो तो UAA या UAG या जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मैसेंजर RNA का वो सीक्वेंस है जिसमें आप U एक्सपेक्ट करें। यू कैन रिप्लेस द T विद द U। ओके। न्यूक्लियोटाइड से, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। The CDS sequence is fine. It makes sense. Yes. Now look, Yes. how we able to get this sequence from another portal. NCBI ने कहा कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर। So why not I should put that information separately in another portal. तो उसने कोडिंग सीक्वेंसेस के लिए या कंसेंसस सीक्वेंसेस के लिए एक अलग से पोर्टल बना लिया। उसको बोलते हैं CCDS। आप उसको अलग से भी गूगल कर सकते हैं, आप उसको अलग से भी गूगल कर सकते हैं, और आप उस पोर्टल को यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। लास्ट पेज पे भी था, ये देखो इसी जीन की इंफॉर्मेशन है। कैन यू सी CCDS? इसका मतलब है अगर आपने CCDS वाले पोर्टल को इस्तेमाल करना है और इसी जीन को वहां पे देखना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप वहां जाएं, CCDS ढूंढें, उसको गूगल करें, इस जीन को तलाश करें और फिर उसका सीक्वेंस क्लिक करें। व्हाई नॉट, यू कैन क्लिक हियर and you can go directly from here to the other website. वो जो other website है, मैं न्यू कर रहा हूँ, वो जो other website है, that other website is
कॉल्ड एज कंसेंसस CDNS सीक्वेंसेस, और ये NCBI ने ही बना के रखी हुई है। आप यहाँ पर अलग से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन देखो ये हमें अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसने कंसेंसस CDNS सीक्वेंस का कोड अप्लाई ऑटोमेटिकली कर दिया और इट गिव्स अस द सीक्वेंस ऑफ दैट जीन। कितना बड़ा सीक्वेंस है यहां से वहां तक, 3915 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर फॉर दिस जीन। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मिलेगी, हमें भूलनी नहीं है, वो ये है कि जो अल्टरनेट कलर्स हैं दे आर अल्टरनेटिव एक्सोन्स, दे अल्टरनेट एक्सोन्स। तो आप इस यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पहले एक्सोन के अंदर कितना सीक्वेंस है, दूसरा एक्सोन का सीक्वेंस क्या है, थर्ड एक्सोन का क्या है, फोर्थ एक्सोन का क्या है, फिफ्थ एक्सोन का क्या है। तो पहले एक्सोन का सीक्वेंस कहां से कहां तक है, ये ATG से लेकर जहां ये ब्लैक वाला, उसके बाद ये दूसरा एक्सोन है, फिर ये तीसरा एक्सोन है, फिर ये चौथा एक्सोन है, फिर ये पांचवा ब्लैक, छठा ब्लू, सातवां ब्लैक, आठवां ब्लू, नौवां ब्लैक, 10th वाला blue, and so on. You can count the number of exons. सर इसमें इंट्रॉन नहीं? यार ये जीन का सीक्वेंस है, इसमें इंट्रॉन्स नहीं है, ये मैसेंजर RNA है ना, इसमें इंट्रॉन नहीं होता। ओके ठीक है, लेकिन आपका सवाल बन सकता है मैंने तो पूरा जीन देखना है, मुझे इंट्रॉन भी दिखाए, मैंने नहीं पता इसके दरमियान में क्या था, है ना। फरमाइश कर, जी सर, करो फरमाइश, फरमाइश करो ना। आवाज काट रही है। मैंने कहा आप फरमाइश कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, मुझे इंट्रॉन भी चाहिए दरमियान में, ये क्या बात हुई आप सर बात तो है सर वो यही मसलन जब हम अगर सीक्वेंस कर रहे हैं जीन सीक्वेंसिंग, तो उसमें सर इंट्रॉन्स तो आएंगे, जरूरत तो नहीं है कि हम उसका मैसेंजर RNA बनाएं और फिर उसके बाद ही हम उसको। लेकिन अगर आप अगर आप जीनोम सीक्वेंस की एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप म्यूटेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैसेंजर RNA एट ऑल, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द जीनोम सीक्वेंस। और जीनोम सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें एक्सोन्स भी आते हैं, उसमें इंट्रॉन्स भी आते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ये कितने एक्सोन बनते हैं, काउंट करेंगे आप मेरे साथ, आपने पता नहीं पेज खोला, आप जरा हिम्मत करना, जरा काउंट करना। ठीक है, ये एक अल्टरनेट कलर पे ना अलग अलग एक्सोन्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से कर लेंगे कि वहां जाकर करेंगे, कर लोगे तो मैं नीचे जाऊंगा, आपने गलत नहीं करना। ठीक है, काउंट शुरू कर दें, काउंट करना। 12। अभी मैंने पूरा खोला नहीं, सारी हौसला कर। अगर आपने सर ये ब्लू वाला एक्सोन है ना, ये ब्लू वाला एक्सोन है ना? नहीं ब्लैक वाले भी एक्सोन है। अच्छा, दोनों है, दोनों है, दोनों है, अल्टरनेट है ना। मसलन मैं बताता हूँ यहाँ से, ये पहला एक्सोन है ब्लैक, ये फिर इसका दोबारा, ये पहला एक्सोन है यहाँ तक, ओके। फिर ब्लू है, ये दूसरा एक्सोन है, फिर ये ब्लैक है, ये थर्ड। 25 है।